we started with the district hospitals. But when we visited Gujarat, we saw them doing wonders on PHCs. We really thought that this is great work. उनका जो PHC में इतना अच्छा काम हो रहा है कि उनके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लोड इतना कम हुआ है उससे. The quality of care they are providing at the PHC level is so good. Basic things. They're not treating cold and cough and routine things. They may be treating many of such diseases, but routinely cases of such nature are not coming to their district hospitals because they are treating them at first level. उनका quality of care at PHC level is so good that patients are not, they are not flooded with patients at the district hospital. So that really struck us. Okay, why not we also do the similar thing? So second thing which he told us that while doing the district hospital, we were engaging consultants from outside. He said you don't need consultants. You do it yourself. Your own team should imbibe the quality culture and they will themselves do quality. So with these two messages we came from Gujarat, we discussed with the DG, we discussed with the secretary, and they also agreed, and in fact DG has said that we will take a lead in this. So they will be coming, the secretary and the DG will be coming at 11:30 today. So before that we want to cover a few things. So this was the basic philosophy behind going for a PHC quality improvement. So what we are now doing is that Dr. Meena will tell you about the standards over the entire day. PHC के लगभग जितने standards हैं वो कैसे देखने हैं, उनको कैसे evaluate करना है, उसका क्या मतलब है, ये अगले पूरे दिन में डॉक्टर मीना आपको बताएंगे. हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन को ये लिखा था कि अपनी बेस्ट PHCs जो हैं वो हमको बताएं, 2 बेस्ट PHCs बताएं. और 2 बेस्ट PHCs में से उन्होंने फिर हमको एक बताई कि जो उनकी उसमें से भी बेटर है. उसको हमने लिया है क्योंकि इट्स ऑलवेज गुड टू स्टार्ट विद द बेस्ट. Now we will. I listed a few PHCs in the state, and I find our PHCs of the level of Gujarat even better. But there are certain things we are not doing which they are doing. So I took suggestions from Dr. Meena. He says ये चीजें आपको करनी जरूरी हैं. Your patient inflow will increase, your quality will improve, and you can do it yourself. इसको इतना बड़ा पहाड़ नहीं है बोलने वाला. So I just now hand over the mic to Dr. Meena, and he will take you through the entire NABH guidelines on PHC and CHC. We are not going for CHC guidelines at present, so he may not touch on the CHC guidelines. Only PHC he will focus on. And along with the PHC, we have invited PHC doctors, we have invited the deputy civil surgeons who are in charge of that PHC. I welcome Dr. Aditya Chaudhary, who will be coordinating at the state level with this program. So those deputy surgeons will also be will look at this program at the district level. So before I hand over the mic to Dr. Meena, I will just ask Dr. Aditya Chaudhary to say a few words, and then we will hand over the mic to him. As you know, I am looking after infrastructure at the state headquarters. I welcome you all. I consider you lucky because your PSCs have been chosen for this quality improvement program. So I welcome you all and thank the resource persons who have come from Gujarat to address you. Thank you. What is quality? According to norms, yes. Yes. Into any work we are stuck with norms according to which we work. Then we can say the quality is maintained. Quality is maintained. Any others?
और भी बोलो तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक तो अकॉर्डिंग टू नॉर्म, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स, दूसरा कोई है व्हाट इज क्वालिटी। क्वालिटी की अगर जनरल भाषा में अपन बोले, आई थिंक राइट वर्क एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, फॉर द राइट क्लाइंट्स, बाय द राइट पर्सन इज नॉन एज क्वालिटी। प्रतिभा गुप्ता, डिप्टी सिविल सर्जन हिसार। डॉक्टर सुनील भट्टी, पीएचसी ग्रोहा हिसार। अरुण शर्मा, टीपीओ खड़े। डॉक्टर घनश्याम, डेंटल सर्जन, पीएचसी बेडाना, डिस्ट्रिक्ट पटियाला। डॉक्टर अरुणा सानवल फ्रॉम डिप्टी सिविल सर्जन गुड़गांव। डॉक्टर विजय विवेक, एमओ पीएससी संजरौली, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर। डॉक्टर विजय फ्रेजर, डिप्टी सिविल सर्जन यमुनानगर। गुड मॉर्निंग, डॉक्टर मजिला, डिप्टी सिविल डॉक्टर राजेश चौधरी, पीएचसी भाषण, डिस्ट्रिक्ट यमुना। डॉक्टर अरविंद सहगल, पीएचसी अमीन, कुरुक्षेत्र। गुड मॉर्निंग, आई एम डॉक्टर डॉक्टर डिस्ट्रिक्ट अम्बाला। डॉक्टर प्रियंका धामरा, पीएचसी जयदेवंती, डिस्ट्रिक्ट जी। डॉक्टर नरेश वर्मा, एसएमओ से दुलाना, डिस्ट्रिक्ट जी। डॉक्टर जितेंद्र कुमार, पीएचसी जमालपुर, डिस्ट्रिक्ट भिवानी। डॉक्टर एसआर शिवाज, एचडीएच भवानी खेड़ा, इन एडिशन एसएमओ प्रशांत, पीएचसी, इन एडिशन डिप्टी सिविल सर्जन नागपुर। डॉक्टर बलराम सिंह, पीएचसी शिल्पा। डॉक्टर जितेंद्र त्यागी, एसएमओ सीएचसी समानता, डिस्ट्रिक्ट भिवानी। डॉक्टर जयकिशोर, डिप्टी सिविल सर्जन सोनीपत। गुड मॉर्निंग, डॉक्टर सुमन कौशिक, एमओ पीएचसी मुक्तल, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत। डॉक्टर नरेश आनंद, पीएचसी मॉर्निंग, डॉक्टर गौरव भाटी, एमओ पीएचसी केरल। डॉक्टर रूपचंद, पीएचसी इंदौर। डॉक्टर अमित चौधरी, पीएचसी मातरेल, जयचंद। डॉक्टर राज, For both patient as well as provider is known as quality. अगर ये सारी भाषा भी आपको याद नहीं रहे तो एक सिंपल जो लैंग्वेज है जो आपके दिल को चाहिए ये दूसरे को प्रोवाइड कर देते हैं इसको। एज ए डॉक्टर अपन को सारा पता है कि एक्चुअल डिजीज में क्या देना है, क्या वही चीज हम पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। एक बार जस्ट सामने बैठ के तो देखो क्या वो सेटिस्फाई है अपने ट्रीटमेंट से, क्या अपने एनवायरनमेंट से सेटिस्फाई है, या अपने बिहेवियर से सेटिस्फाई है। अगर वो सब कुछ है दैट मींस क्वालिटी, इसके अलावा कोई क्वालिटी नहीं। आज इस तरीके से मैं आशीष साहब का रियली खूब धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक हरियाणा गवर्नमेंट जिस स्टेप पे जा रही है, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी गलतियाँ की, साहब ने तो हमारा जो बखान की है, हम लोगों से गलतियाँ भी बहुत सारी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि गलतियाँ नहीं होती हैं, क्योंकि फर्स्ट जब इनिशिएटिव लेते हैं तो बहुत सारी गलतियाँ भी होती हैं। और मैं चाहता हूँ कि वो गलतियाँ यहाँ ना दोहराई जाए। क्वालिटी के नाम पे जो अननेसेसरी का वेस्टेज ऑफ मनी हो रहा है वो कहीं ना कहीं रोकने की जरूरत है। एक्चुअल में इतनी जरूरत नहीं है कि हम अननेसेसरी की चीज़ों को 5 स्टार बनाते हैं या कुछ बनाते हैं। हमारा जो मेन मकसद है क्वालिटी का, हाउ टू इम्प्रूव क्वालिटी, हाउ टू सेटिस्फाई द पेशेंट, हाउ टू सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट, दैट इज द मेन इम्पोर्टेंट। अगर आप ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स वाइज जाओगे तो आपको इजीली पता लग जाएगा कि एनएबीएस के स्टैंडर्ड जो कि 70% ऐसे हैं जिसमें कोई खर्चा की जरूरत नहीं, विदाउट एनी मनी, 70% अचीवमेंट इज डन। और एनएबीएस एक्रीडिटेशन कितने का मिल जाता है? 70% का तो मिल ही जाता है। ओनली 30% जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स है उसमें से 20% ऐसे जिसमें कि थोड़े बहुत पैसे आप लगाओगे तो आप इजीली अचीव कर सकते। ओनली 10% ऐसे जिसमें कि ज्यादा पैसे की जरूरत है। हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 10% के ऊपर पहले फोकस किया जाता है, 90% हम भूल जाते हैं। जो अगर 90% को फोकस किया जाए तो हम एक्रीडिटेशन लेवल पर पहुंच जाते और 10% के बाद में कंटिन्यूअस क्वालिटी में करते रहो। इसने मना किया।
अगर एक ही बार हम 100% पहुंच जाओगे तो 100 के बाद में कहाँ पहुंचोगे? क्योंकि क्वालिटी इज अ कंटिन्यूअस जर्नी। वो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार क्वालिटी इंप्रूवमेंट कर दी यहाँ पर पहुंच गए उसके बाद में कुछ नहीं है। इट्स ए कंटिन्यूअस जर्नी। वो चेंजेस भी रहता है, वो होता रहता है, क्योंकि ट्रीटमेंट पार्ट हो सकता है कभी चेंज हो जाता है स्टैंडर्ड्स को माना। तो इसलिए आप उस चीज को फोकस करो जो इजीली अचीवेबल। फर्स्ट फोकस ऑब्जेक्टिव है। Before I start one presentation, इसकी लाइट करेंगे। ओके, एक सिंपल एक एग्जांपल मैं आपको दूं। मैं फील्ड विजिट में गया था, वहाँ पे एक पेशेंट जो कि डेंगू एपिडेमिक हुआ था, उसी एरिया से अगर कोई पेशेंट आता है 42 किलोमीटर दूर डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर उसे सिंपल ये होता नहीं आपको सिंपल बुखार है आप घर जा सकते, और उसको एक ट्रीटमेंट जैसे कि जो अपनी वो होती है ना एक आदत कि हम लोग पढ़ते सब कुछ है, इंटर्नशिप में सब कुछ पढ़ा होता है, फाइनल एमबीबीएस में सब कुछ पढ़ा होता है कि हिस्ट्री टेकिंग ये इन्वेस्टिगेशन सारा कुछ पढ़ा होता है, लेकिन फॉलो कितना होता है? अगर वही चीज का फॉलो हम प्रैक्टिकल में कर दें तो मेरे को लगता है कि किसी भी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है, सबसे बड़े कंसल्टेंट तो हम ही हैं, क्योंकि ऑलरेडी हिस्ट्री आप पूरा पढ़ते हो कि फिजिकल एग्जामिनेशन, सिस्टमिक एग्जामिनेशन, ब्लड डायग्नोसिस, उसके बाद में डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट पार्ट, सारा कुछ बेस्ड है। फाइनल एमबीबीएस में आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, इंटर्नशिप में आप सब कुछ कर सकते हैं, बट जब प्रैक्टिकल की बात आती है तो सिर्फ देखा पेशेंट, उसने बोला बुखार है, ठीक है, कह रहा है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि उसको प्रॉपर्ली एग्जामिनेशन भी नहीं किया जाता। तो अगर किसी पेशेंट को एग्जामिनेशन नहीं किया जाता तो फिर 5 स्टार होटल में बैठ के क्या करता? सेम उस डेंगू पेशेंट के साथ हुआ, उसने अगर फीवर बोला, उसने सिंपल पैरासिटामोल लिख दी, वो घर पे वापस गया 42 किलोमीटर दूर, जो मुश्किल से आया रहता है, शाम को वो कॉन्शियसनेस में जाता रहा, अनकॉन्शियस हो गया, सुबह वापस आया, कोमा में पेशेंट आया गया, रात को उसकी डेथ। हु इज द रेस्पॉन्सिबल? क्या वो पेशेंट रेस्पॉन्सिबल था? पेशेंट तो टाइम से आ गया था अपने, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे सिर्फ इसलिए नहीं देखा कि ठीक है कॉमन है ये ले, और उसके बाद में क्या कंडीशन होती है, ठीक है अपने ऑल ओवर इंडिया में तो इतनी पॉपुलेशन है कि एक चला जाएगा तो पॉइंटों में होगा, लेकिन कभी ये विचार किया कि उसके घर में वो 100% है? जस्ट वो थिंकिंग करने की जरूरत है। क्वालिटी सिर्फ आपके हार्ट से आने वाली है, क्वालिटी किसी फोर्स से नहीं आनी। मैं आपको पहले बता, आप क्वांटिटी को सिर्फ इरेज करके मिटा सकते हो और क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, बट क्वालिटी जब तक आपके दिल में नहीं होगा आप क्वालिटी नहीं ला सकते, किसी भी फोर्स से नहीं ला सकते। चाहे वो आपको आपके चीफ सेक्रेटरी साहब बोले या मैडम प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैडम बोले या क्वालिटी उससे नहीं आने वाली, जब तक आपके दिल में नहीं होगा तब तक क्वालिटी नहीं। इसलिए बेस्ट है कि क्वालिटी के लिए आप सबसे पहले आप फोकस हो कि जो हमें चाहिए वो आप दूसरों को प्रोवाइड करो कि एक्चुअल में क्या। सेम थिंग्स क्वालिटी इज नेवर इम्प्रूव्ड टू ए सिंगल पर्सन। आशीष साहब ने बोला कि डॉक्टर मीना ने बना दिया, बट डॉक्टर मीना अकेला कुछ नहीं कर सकता, इट्स ए टीम इफोर्ट। जब तक आपकी टीम नहीं होगी क्वालिटी नहीं आने वाली। एक सिंपल एग्जांपल है, सर्जन सर्जरी करके चला जाता है, लेकिन उसकी इन्फेक्शन कंट्रोल के पीछे एक शुपर्स का भी हाथ है। अगर वो प्रॉपर सफाई ना करे और इन्फेक्शन हो जाए तो फिर तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्जरी से सिर्फ सर्जन का बहुत बड़ा नाम हो जाए, लेकिन वहाँ पर जो क्लीननेस हाउसकीपिंग स्टाफ है वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है कि अगर वो प्रॉपर नहीं करे तो आपके कोई भी इन्फेक्शन लग सकता है। तो ये चीज आपको खास ध्यान रखने की बात है कि क्वालिटी एक्चुअल में क्या है। यहाँ पे आपको जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स जो दिए गए वो फोटो के साथ में दिए गए, जिससे कि आप मिस कंफ्यूजिंग ना हो। और मेरी एक दूसरी खास विनती है, जैसे